And today I am teaching you lesson number 4 in Honeydew, Vipin Chaudhary's Lots of Memory, part 3rd. After lunch time, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at the desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a दोपहर के भोजन के पश्चात विपिन बाबू को महसूस हुआ कि वह अब और अपनी डेस्क पर नहीं बैठ सकता और काम नहीं कर सकता। 25 सालों में जब से वह इस कंपनी में था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनकी साख एक कभी न थकने वाले कर्मठ कार्यकर्ता की रही, परंतु आज उनका सिर चकरा रहा था। टायरलेस consciousness worker, but body his head was in a whirl. से चक रहा था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. 2:30 बजे घर पहुंचकर विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और उन्हें याद करने लगे। उन्हें पता था कि सिर में चोट लगने के कारण किसी को याददाश्त खो सकती है। लग्जरी इंस्टेंट but he did not know single instant of someone remembering everyone except one particular incident, and a very recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly इम्पॉसिबल। पहले कभी नहीं। 2:30 बजे घर पहुँच कर हमारे बिस्तर लेट गए और चोट लग गई, याददाश्त हो गई, परंतु उन्हें ऐसी कोई घटना सिवाय एक के, और वो भी जो हाल में ही थी, उन्हें याद नहीं आ रही थी। वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। वहाँ कुछ हो गया, कुछ किया हो, कुछ याद न हो, ऐसा बिल्कुल असंभव है। At 7:30, Vipin Babu's servant came and announced, Chuni Babu, sir says it's very important. 7:30 बजे विपिन बाबू को नौकर आया और बोला, श्रीमान चुन्नी बाबू कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। Vipin Babu knew that Chuni had come. Chunilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him, and in fact told him so, but Chuni kept turning up like a bad penny. विपिन बाबू जानते चुन्नी क्यों आया था। चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। पिछले कुछ समय से उसका मुश्किल समय चल रहा था और नौकरी के लिए वह मिलने आता था। विपिन बाबू जानते थे उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था, हालांकि उसे बता चुके थे, परंतु चुन्नी खोटे सिक्के की भांति लौट आता था। विपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now, but now not to several weeks. विपिन बाबू ने संदेश भेजा, केवल अभी बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों तक वह चुन्नी से नहीं मिल पाएगा। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Vipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking. परंतु जैसे नौकर कमरे से बाहर निकला, विपिन बाबू को लगा कि शायद चुन्नी 58 के दौरे के बारे में कुछ यादों से पूछने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू hurried round the stairs and into the living room.
Chunni was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned round hopefully. विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियाँ उतरे और मेहमान कक्ष में आ गए। चुन्नी जाने वाला था, परंतु विपिन बाबू को आते देख वह उम्मीद मुड़ गया। विपिन बाबू ने घुमा फिराकर बात नहीं की। Vipin Babu did not beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? सुनो चुन्नी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और मुझे से लंबे समय से मिलते भी रहे हो। ज़रा याद करो, मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ amazement was that not unmixed with worry. Do you mean you have doubt about having gone all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni Lal sat down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long and stare and said, Vipin, have you taken 2 drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you're forgotten about the Ranchi trip. चुन्नी सोफे पर बैठ गया, विपिन बाबू को देर तक घूरा, फिर और बोला, विपिन, क्या तुमने कोई नशा वगैरह किया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, परंतु तुम्हारी कम से कम याददाश्त बहुत अच्छी है। तुम्हारा यह मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम रांची के दौरे के बारे में बिल्कुल भूल गए हो। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज आस्क्ड चुन्नीलाल। चंदे भर दूर हटना पड़ा। क्या तुम्हें याद है मेरी आखिरी नौकरी कौन सी? चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स आई वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी। बिल्कुल, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हू फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग टू रांची, वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ one of the fans in your compartment was not working. I got the electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. Vipin Babu sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तुम्हें याद है और याद नहीं, वो मैं ही था जिसने तुम्हारे रांची के लिए रेल की टिकट बुक की थी। मैं तुम्हें स्टेशन पर अलविदा करने आया था। तुम्हारे कुप्पे में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। मैंने बिजली वाले को बुलवाकर उसे ठीक करवाया। क्या तुम सब भूल गए? तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? तुम ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहे। डाउटलेस इट वाज विपिन। विपिन बाबू उदास हो अपना सिरा दिया। मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उन्होंने आखिरकार कहा। यही कारण होगा, मुझे किसी विषय को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वाज विपिन a condition with
made Chunilal leave about mentioning anything about a job. Paresh Chandra was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. विपिन बाबू की हालत बेशक वह विपिन की हालत थी जिसके कारण चुनीलाल अपनी नौकरी के बारे में बिना बात किए चला गया। परेश चंदा एक युवा डॉक्टर था जिसकी 2 चमकीली आंखें थीं और एक तीखी नाक थी। उसने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो सोच में पड़ गया। देखिए डॉक्टर चंदा, विपिन बाबू ने जल्दी से कहा, आपको मुझे इस भयंकर बीमारी ठीक करना ही होगा। मैं आपको बता नहीं सकता इससे मेरे काम पर कितना असर पड़ रहा है। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर चंदा शुक, यू नो वाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. Vipin Babu leaned forward anxiously. आपको पता है चौधरी चौधरी, उसने कहा, मैंने कभी भी ऐसे केस जैसा कि आपका है नहीं सुलझाए हैं। सच तो यह है कि ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर है, परंतु मेरे पास एक सलाह है। मुझे पता नहीं आप काम करेगी या नहीं, परंतु कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। विपिन बाबू तेज होकर बढ़ गए आगे। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड चंदा, एंड थैंक योर्स द सेम ओपिनियन. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, but due to some unknown reason the entire episode had slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi. Once again, the sight of the place may remind you of your trip. This is not possible more than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Vipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. जितना मैं समझता हूँ, आप चंद्र ने कहा, मुझे लगता है आप सही सहमत होंगे, आप रांची गए होंगे, परंतु अनजान कारण से वह पूरा वाक्य आपके दिमाग से निकल गया। मैं सलाह दूंगा आप एक बार फिर रांची जाएं, उस जगह के दृश्य शायद आपको आपकी यात्रा याद दिला सकें। यह असंभव नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको एक महीने की दवा और एक नींद की दवा देता हूँ। सोना जरूरी है, वरना उच्चरित हो जाएंगे लक्षण। विपिन बाबू को अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस हुआ। इसके पश्चात नाश्ते को फ़ोन किया, उन्हें कुछ आदेश दिए, फिर उन्होंने शाम को रांची के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट पा ली।